कारपुर फ्रॉम एनआईजीएमटी फाउंडेशन। आज हम जानेंगे आपकी जर्नी और एक्सपीरियंस के बारे में। सो हाय, व्हाट्स योर नेम? My name is Amit Maurya. ओके, कहाँ से हैं आप? So I'm from UP itself, Uttar Pradesh, and right now I'm at IIT BHU Varanasi. I'm a full-time research scholar here in the Department of Architecture, Planning and Design. ओके, सो सबसे पहले अपने अपना क्या एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। Okay, so basically I am an, as I told you, I am an architect. I have a degree of BR. Then I completed my MR from Jamia Millia Islamia, and then I right now I am here a full-time research scholar in the Department of Architecture, Planning and Design, and it's my third year going on right at this current time, and I just need like one more year to submit my PhD. ओके, सो एनआईजीएमटी फाउंडेशन का नाम आपने कहाँ से सुना था? So I came to know about this when I was struggling with GIS and remote sensing work because I knew that in my PhD I will be using these softwares for the assessment of wetlands. That is my research topic. So I was searching online. So I came to know about NSGMT using this social media platform. I think Instagram or some other platform. I don't remember now, but it was some social media platform. ओके, तो एनआईजीएमटी फाउंडेशन में आपने कोर्स में एनरोल किया था? So it was a 6 month course ओके। which included GIS and remote sensing. Since both of these courses were the major requirement for my work, so I took these courses, and I also joined one of the Python course also. But unfortunately, due to my time constraint, I could not complete that course. ओके, सो मोड ऑफ लर्निंग क्या था आपका? So mode of learning it was online because I'm a full-time research scholar, so I can't go and take classes there. But yes, I took my like I took an online batch, and that too was weekend batch. ओके, Yes. सो जब आपने ये कोर्स ज्वाइन किया था तब आपका क्या पर्पस था? So as I told you, like my research interest, it is on this GIS only. So होता क्या है कि most of the planners, urban planners and environment planners, they work in GIS because it is very difficult to assess a regional level area or a city level area using basic tools of surveying and modeling, or maybe could be any other method of assessment. But like GIS, it helps to remotely assessing all those things or all those physical assessment is being done easily. So I was pretty sure that I had to continue or do my PhD in wetland assessment. So I went for this geospatial assessment of wetlands using RS and GIS. So that was the primary reason that I selected this GIS based work. ओके, सो अभी आप पीएचडी कर रहे हो? Yeah, I'm doing PhD. ओके, किस टॉपिक पे कर रहे हो आप पीएचडी? So my topic is geospatial assessment of wetlands, uh, and I'm trying to see the impact of urbanization on the urban wetlands, like the lakes. So mostly, like all my work is dedicated towards this physical mapping of the area. I'm also trying to see like how the area has changed. The morphology of the area has changed over the time, like maybe due to the increasing urbanization, urban growth, and the declining of this forest area and this change in the ecosystem services of an area. And I'm also trying to see the predictive modeling, like what are going to be the future scenarios of those lakes or the city, how they are going to be in the upcoming future. So all those work is being done using GIS and remote sensing only. Yeah. ओके, सो आपने बताया कि आपने ऑनलाइन कोर्स करा था, तो ऑनलाइन का एक्सपीरियंस कैसा था और फैकल्टी के साथ कैसे थे? सपोर्टिव Uh, थे, कैसा it था? was good. Yeah, and everyone was good. Like they were on time, हुँ, and they would dedicatedly give all their lectures. इनफैक्ट कभी ऐसा कुछ लेक्चर शेड्यूल करना होता था तो हुँ, they could टेल beforehand only कि आज हम प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे. इनफैक्ट they was I don't know,
अभी वो मैम है या नहीं यहाँ पे, बट देयर वाज अ मैम, आई शुड एक्नॉलेज हर, शी वाज पूजा, एंड आई डोंट रिमेंबर द सरनेम. So yes, she taught me remote sensing, yes. So she was really helpful. She would take weekly tests and assignments also. तो उससे क्या होता था कि जो भी हफ्ते भर में सीखा है, या फिर जो लास्ट वीक में उन्होंने पढ़ाया है, वो उस पे उसका एक प्रैक्टिकल असेसमेंट भी लेती थी, एंड मीनवाइल वो उसका थ्योरेटिकल असाइनमेंट भी देती थी लिखने के लिए. और फिर जो सेमेस्टर के एंड में उन लोगों ने एक रिटन टेस्ट भी लिया था, और एक प्रैक्टिकल असेसमेंट भी लिया था. तो इससे हुआ क्या, इससे मेरे को थ्योरेटिकल नॉलेज तो हुई, क्योंकि अभी हम लोग को जब बच्चे को पढ़ाना होगा नियर फ्यूचर में, अभी अभी भी हम लोग टीचिंग असिस्टेंटशिप, जो जितने भी आईआईटी होते हैं वो टीचिंग असिस्टेंटशिप में बच्चों को रखते हैं. तो जैसे मेरा जो लैब है वहाँ पे रिमोट सेंसिंग में जेएस बेस्ड काम ही होता है, तो मेरे प्रोफेसर भी जेएस एंड रिमोट सेंसिंग के एक्सपर्ट हैं. तो मेरे को जो टीए मिलता है, टीए मीन्स टीचिंग असिस्टेंटशिप पे जब मैं जाता हूँ, तो मैंने 6 महीने के लिए सब्जेक्ट पढ़ाया भी था. तो इसमें क्या होता है, हमको थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिला और साथ साथ हमको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिला, तो हम दोनों ही इसमें मतलब हेल्प मिला. एंड फिर ऑनलाइन एक्सपीरियंस में यही बोलूंगा कि डेडिकेटली मैं अपने टाइम के हिसाब से मैं वो कर पाया, मतलब मेरे को, क्योंकि मैं नहीं जा सकता था ऑफलाइन मोड पे, तो इसलिए मुझे ऑनलाइन में बहुत इजी हुआ. इनफैक्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में या फिर किसी भी क्वेरी में बहुत बार ऐसा होता था कि दिस ऐप जिसके थ्रू आप स्क्रीन शेयर करके भी हेल्प ले सकते हो. तो उन्होंने, मैम ने मेरे को ऐसे भी, मैम और सर ने ही मेरे को वैसे हेल्प किया था, जिसमें मैं स्क्रीन शेयर करके उनको दिखाया था, और फिर वो लोग हेल्प करते थे. या फिर डेटाबेस में अगर मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जब ये इसके कोर्स के बाद में भी डेटाबेस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आता था, तो मैं उन लोगों को भेज दिया करता था, और फिर वो लोग खुद ही रिजॉल्व करके ट्राई करते थे कि हो जाए या कैसे भी करके. मेरे को बहुत हेल्प मिला, मैं तो सेटिस्फाइड था. ओके, ठीक है। क्या आपने पीएचडी स्टार्ट करने से पहले कोई रिसर्च पेपर पब्लिश किया था? नहीं, एक्चुअली उस टाइम पे मेरा, मतलब आई वाज नॉट वेरी श्योर दैट आई एम गोइंग टू बी इनटू रिसर्च फील्ड और नॉट. बट यस, द थिंग वाज, आई न्यू दैट आई हैव टू डू माय वर्क ऑन रिमोट सेंसिंग एंड जेआईएस, बट मेरे को उतना आता, मतलब आता ही नहीं था मुझे. जब मैं मास्टर्स में भी था तो मैंने सीखने की कोशिश की थी, और मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी किया था, बट मेरे को वो समझ में ही नहीं आया था पूरा. मतलब जब बैंड्स वगैरह हम डाउनलोड करते थे, डिस्प्ले करते थे, वो पूरा ब्लैंक होता था, कुछ समझ में नहीं आता था कुछ भी. Sir, I came to know about your course, and I was a bit hesitant whether should I join it or not, because yes, I got the information through online source. So everyone in India, like, it is, they are a bit afraid my money should not get wasted, or it's a fraud scheme or something. So I took a chance, and I got connected with some of your member. They asked me to join it before my PhD itself, but I got rejected from various institutes. Like, I applied for, I in fact here also at IIT BHU, I got selected at the second attempt. So in the first attempt, I got rejected, and then I learned GIS and remote sensing thoroughly, like deeply, and then I again made my proposal, and I again pitched to the same professor, and then I got selected here. Yes. And right now, I also have one of the paper, being published, and it's in a good journal. It's the journal is Environmental Conservation, and it's the part of Cambridge University Press. So while I was working on that paper, there was a model which I was working, like there was a predictive model which I was working. So there was some problem with the variable, a single variable, which was like almost the work of just 2 3 minutes, but I could not resolve it. So I took help from Namit, and he also, like, he actually helped me after the completion of my course, almost like after 6 months. So I called him. I told him that I am facing this problem. Could you help me? So he gave me his time, and so luckily I got lucky enough that he could resolve my problem. And later on, like, yes, I got my paper published, and I'm really helpful. I'm really thankful to all those people who helped me. Yeah. जब आपके पास जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग की नॉलेज नहीं थी, तब रिसर्च Mhm. पेपर पब्लिश करने में आपको क्या परेशानी आती थी? Uh, समझ में ही नहीं आता था वो जो मैथ्स वगैरह होते थे. ठीक है, उसके बाद में एक्चुअली क्या है ना, कि आज के टाइम पे द वर्क इज मोर ऑन दिस जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग इंडस्ट्री. सो आई कुड एक्चुअली present some analysis maps which can give me some visual representation. Okay, so the research is actually of two three methods, like one is quantitative and another is qualitative.
तो मुझे पता था मैं हुँ, क्वालिटेटिव नहीं कर सकता, उसमें बहुत सारा लिखना पड़ता है। फिर हुँ, क्वांटिटेटिव में मुझे ये पता था कि मैं अगर मैं जीआईएस के मैप्स वगैरह प्रेज़ेंट करके लगाऊँगा, तो उससे क्या होता है हुँ, जो ऑथर्स होते हैं और जो रिव्यूअर्स होते हैं वो थोड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं उसको जानने में, क्योंकि हमको जो विज़ुअली दिखता है ना, हम उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। तो मुझे ये पता था कि मुझे कुछ काम अपना ऐसे ही कुछ करना है जिसमें मेरे पिक्चर्स रहे, जिसमें मेरा कुछ डायग्राम्स रहें, मैप्स रहें। तो इसलिए मुझे यही था कि मुझे सीखना है एंड अगेन इसमें मेरे को ये हेल्प मिला कि अभी मुझे जब बेसिक्स पता है तो मैं एडवांस लेवल का कर सकता हूँ थोड़ा-थोड़ा। लाइक मैंने जे आर्क मैप्स वहाँ से सीखा। अब मेरे को प्रो पे अगर काम करना है तो सेम टूल्स हुँ, ही हैं, बस इंटरफेस थोड़ा-सा डिफरेंट ही है। तो हुँ, ये मैं मानता हूँ कि आज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि विज़ुअल क्योंकि मेरे जो कुछ कलीग्स हैं और कुछ लोग हैं, वो आज भी स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनको जेएस नहीं आता तो उनको मैथ में बहुत दिक्कत पड़ता है। तो हुँ, और इनफैक्ट अगर आपका काम जीएस बेस्ड नहीं भी है, तब भी आपको अपने पेपर में अगर लेट्स सपोज स्टडी एरिया मैप तो दिखाना ही पड़ता है हर पेपर में कि आपका हुँ, एरिया क्या है स्टडी का। तो आपको अगर जेएस का बेसिक इन्फॉर्मेशन भी होगा, तभी आप अपना एक स्टडी एरिया मैप तो अच्छा बना सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इनफैक्ट जो बंदे का काम जीआईएस में भी नहीं है या रिमोट सेंसिंग बेस्ड काम डीप में नहीं है, उसको भी अगर लेट्स सपोज क्वालिटेटिव काम ही है, बट उसको भी अगर बेसिक कुछ-कुछ अपना रिसर्च का बैकग्राउंड दिखाना है, हुँ, तो उस सिटी के बारे में, उस एरिया के बारे में हम जेईई से अच्छा मैप बना ही नहीं सकते क्योंकि उसमें पुराने डेटा सेट्स को यूज़ करके आप हिस्टोरिकल से लेके करंट रिसर्च फ्रेमवर्क सब कुछ आप दिखा सकते हो। तो यस, इट हुँ, इज़ रियली हेल्पफुल। ओके। हुँ। लास्ट क्वेश्चन है कि जो रिसर्च बैकग्राउंड से है, उनको कोई एडवाइस देना चाहोगे? अम, रिसर्च बैकग्राउंड से हैं, अगर वो लोग कोर रिमोट सेंसिंग एंड जेईई बेस्ड काम कर रहे हैं, तो हुँ, मैं तो उनसे यही बोलूँगा कि learn as much as you can and try to get into the depth of the softwares and use new tools as well as हुँ, yes right also do one thing जब भी आप कोई भी कोर्स सीख रहे हो ना तो उसमें सिमिलरली आप ये देखो कि कौन सा पेपर पब्लिश हो रहा है किस डोमेन में हुँ, हो रहा है क्या वो मॉडल्स यूज कर रहे हैं सो दैट हुँ, आप अपना जो क्वेरीज हैं वो सिमिलरली जो यहाँ पे मेंटर्स हैं उनसे पूछ भी सकते हो ठीक है एंड दे हैव अ गुड टीम लाइक फ्रॉम this basic GIS and remote sensing to some advanced Python and coding people, they have everyone. In fact, अगर नहीं भी होगा तो you can just ask for suggestions कि सर मेरे को इसमें दिक्कत आ रहा है मेरे को अगर जैसे मेरे को एक दिक्कत आया था बैथमेट्रिक में काम कर रहा था तो मैंने तिवारी सर को फोन किया था उस टाइम पे कि सर मेरे को बैथमेट्रिक सीखना है तो उन्होंने मेरे को बताया था कि बैथमेट्रिक इस टाइप का होता है ये होता है वो होता है मैंने उसके बाद में और पढ़ा तो मुझे पता लगा कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता अपने रिसर्च के लिए, मैं हुँ, अपना ऑब्जेक्टिव थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो इसलिए मैं ये हुँ, बोलूँगा कि जो भी आप सीख रहे हो, उसके बेसिस पे आप थोड़ा पढ़ो भी, उसके बेसिस पे हुँ, पब्लिश करने की कोशिश करो, ठीक है? उसके बेसिस पे हुँ, लिखो थोड़ा क्योंकि जब आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। मतलब हाँ, यहाँ पे ये लोग बस आपको सिखा सकते हैं। आपको सीखना खुद होगा और आपको उसके आगे के रिसर्च गैप और रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ अपने आप देखनी पड़ेंगी। क्योंकि क्या है कि ये लोग तो जैसे हम एक बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें एबीसीडी होता है। तो ये लोग बस एबीसीडी सिखाएँगे। अब उसके बाद में आपका इंटरेस्ट है कि आप एबीसीडी सीख के लिटरेचर में जाना चाहते हो या फिर एंथ्रोपोलॉजी में जाना चाहते हो या फिर हिस्ट्री में जाना चाहते हो। बुक पढ़ना ये लोग सिखाएँगे बट आपका इंटरेस्ट तो आपका है ना कि आपको उस डोमेन में किस पे जाना है और आपको हुँ, क्या काम करना है। तो वो काम के हिसाब से भी आप मेंटरशिप इन लोगों से ले सकते हो और फर्दर मतलब कोई भी मुझे लगता है हेल्प है तो वो कर देते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम तो मुझे नहीं लगता। ओके, ठीक। आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी वैल्यूएबल था। आई होप हुँ, आपकी आगे की जर्नी काफ़ी फ्रूटफुल हो। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके।